Hello, dear students. Our today's topic is A Handful of Dates. It's a short story by Taib Saleh. Taib Saleh, born in Sudan in 1929 and educated at the University of Khartoum, is widely acknowledged as one of the most important contemporary Arab writers. After a brief period of working as a teacher in Sudan, he moved to London to work for BBC Arabic Service. Saleh's writings, drawn from his experience of communal village life, centers around people and their complex relationships. His season of migration to the north is a book published in 2001, is regarded as one of the most important Arab novels of the 20th century. A Handful of Dates is a short story about a young boy who notices that his grandfather isn't all he thought him to be. The young boy, who is the narrator of the story, tells about always following his grandfather and wanting to make him proud. He loves going to the mosque, reciting the Quran, and being praised for his diligence. The boy loves spending time at the river as well. One day he decides to ask his grandfather why he doesn't like their neighbor Masood. And in reply, grandfather shows him the land that belongs to them now. This land once belonged to Masood. Perplexed at this new knowledge, because he thought that the land belonged to his grandfather since the beginning of times, the boy asks him why Masood sold him the land. The grandfather disgustingly answers it's because of a woman. We shall be looking at the first two paragraphs of this story today. We shall start. I must have been very young at the time. While I don't remember exactly how old I was, I do remember that when people saw me with my grandfather, they would pat me on the head and give my cheek a pinch. ये छोटा बच्चा जो कि नरेटर इस कहानी में है, अपने ग्रैंडफादर के इंट्रोडक्शन में ये बात कहता है कि मुझे नहीं पता मैं उन दिनों कितना बड़ा था, मेरी उम्र क्या थी, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह याद है कि मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ निकला होता था और लोग मुझे काफ़ी मोहब्बत से पेश आते थे, मेरा चेहरा थपथपाते थे, मुझे मोहब्बत देते थे. थिंग्स दे डिडंट डू टू माई ग्रैंडफादर, मेरे साथ ऐसी हरकतें करते थे जो मेरे ग्रैंडफादर के साथ नहीं करते थे. द स्ट्रेंज थिंग वॉज दैट आई नेवर यूज्ड टू गो आउट विद माई फादर. अजीब बात मेरे अंदर ये थी कि मैं अपने बाप के साथ कभी बाहर नहीं निकलता था. रादर इट वॉज माई ग्रैंडफादर हु वुड टेक मी विद हिम व्हेनेवर ही वेंट. और ये बात ग्रैंडफादर के अंदर थी कि जब भी वो निकलते थे मुझे लेकर के साथ जाते थे, except for the mornings when I would go for the mosque to learn the Quran. सिर्फ उनके साथ में सुबह के टाइम नहीं निकलता था, क्योंकि सुबह के टाइम मुझे कुरान पढ़ने मस्जिद जाना होता था. The mosque, the river and the fields, these were the landmarks in our life. मस्जिद और हमारे गांव की वो नदी और वो खेत खलियान, ये कुछ यादें थी मेरी ज़िंदगी की. While most of the children of my age grumbled at having to go to the mosque to learn the Quran. और मेरी उम्र के बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मस्जिद जाने को तैयार ही नहीं होते थे कुरान पढ़ने के लिए. I used to love it, लेकिन मुझे इस चीज़ के साथ बहुत मोहब्बत थी.
द रीज़न वॉज नो डाउट दैट आई वॉज क्विक एट लर्निंग बाई हार्ट। और इसकी एक वाहिद वजह ये थी कि मुझे ज़ुबानी बहुत जल्द चीज़ें याद होती थी। एंड द शेख ऑलवेज आस्क्ड मी टू स्टैंड अप। और मौलवी साहब हमेशा मुझे खड़ा होने को कहते थे। एंड रिसाइट द चैप्टर ऑफ द मर्सीफुल वेन एवर वी हैड विजिटर्स। और मुझे फातिहा वाली सूरत वो मेरी ज़ुबानी सुनना पसंद करते थे जब वहाँ कोई विजिटर आया होता था, कोई मेहमान आए होते थे। Who would pat me on my head and cheek just as people did when they saw me with my grandfather। तो उसी तरह ये लोग मुझे मोहब्बत देते थे जिस तरह मुझे तब देते थे जब मैं अपनी ग्रैंडफादर के साथ बाहर घर से बाहर होता था। यस आई यूज इट लव द मॉस्क। हाँ, मस्जिद के साथ मेरी बहुत मोहब्बत थी। एंड आई लव्ड द रिवर टू। और वो नदी के साथ भी मुझे बहुत मोहब्बत थी। डायरेक्टली वी फिनिश्ड द कुरान रीडिंग इन द मॉर्निंग आई वुड थ्रो डाउन माई वुडन स्लेट एंड डार्ट ऑफ। जब भी मैं फारिग होता था कुरान से तो मैं अपनी तख्ती जो है वो छोड़ करके निकलता था घर से बहुत तेज़ी से। क्विक एज ए जिनी, जिस तरह कोई भूत निकलता है दौड़ लगाकर, उसी तरह टू माई मदर, अपनी माँ के पास। हरीडली स्वेलो डाउन माई ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी में उगल लेता था, खाता था। एंड रन ऑफ फॉर ए प्लंज इन द रिवर, और उसके बाद छलांग लगाने के लिए मैं नदी की तरफ भाग जाता था। व्हेन टाइड ऑफ स्विमिंग अबाउट आई वुड सिट ऑन द बैंक एंड गेज एट द स्ट्रिप ऑफ वाटर। और जब मैं थकता था तैरते तैरते इस नदी में, तब किनारे पे आकर के उस चलते हुए पानी को मैं देखता था। दैट वुड अवे ईस्टवर्ड एंड हिड बिहाइंड अ थिक वुड ऑफ अकेसिया ट्रीज। और ये वो पानी था, वो नदी थी जो चलते चलते ईस्ट की तरफ जाता था। और वहाँ पे एक घना जंगल था, दरख्तों का एक बहुत बड़ा झुंड था, और उसी जंगल के पीछे ये मुड़ जाती थी ये नदी। I loved to give rein to my imagination and picture to myself a tribe of giants living behind the wood। और मुझे बहुत मज़ा आता था, मैं सोच में कहता था कि इस जंगल के पीछे कोई जिन लोग रहते हैं। A people tall and thin, वो बहुत लंबे पतले से, with white beard, उनकी सफ़ेद दाढ़ियाँ, and sharp noses, उनकी नोकीलीदार नाकें, लाइक माई ग्रैंडफादर। और मुझे उसी तरह के जिन ये दिखते थे जिस तरह मुझे अपना दादाजी दिखता था। बिफोर माई ग्रैंडफादर एवर रिप्लाइड टू माई मैनी क्वेश्चंस ही वुड रब द टिप ऑफ हिज नोज विद हिज फिंगर, एंड एज फॉर हिज बियर्ड इट वॉज सॉफ्ट एंड लग्जरेंट एंड एज वाइट एज कॉटन वूल। जब भी मेरे ग्रैंडफादर जवाब देते थे किसी बात का, तो उससे पहले उंगली से अपने नाक को रगड़ लेते थे, और उसके बाद जो हैं वो बात करते थे। और जहाँ तक उनकी दाढ़ी का ताल्लुक है, वो इतनी सफ़ेद, इतनी वाइट थी जिस तरह कॉटन होता है। कॉटन हमने देख लिया है। नेवर इन माई लाइफ हैव आई सीन एनी थिंग ऑफ ए प्योरर वाइटनेस और ग्रेटर ब्यूटी। मैंने कभी भी उस जैसी कोई चीज़ सफ़ेद और खूबसूरत नहीं देखी है। माई ग्रैंडफादर मस्ट आल्सो हैव बीन एक्सट्रीमली टॉल। और मेरे ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा लंबे कद के थे। फॉर आई नेवर सॉ एनी वन इन द होल एरिया एड्रेस हिम विदाउट हैविंग टू लुक अप एट हिम। मैंने अपने एरिया में किसी इंसान को उनके साथ बात करते नहीं देखा है कि उनको उनकी तरफ देखना पड़ता था सर ऊपर करके। Nor did I see him enter a house without having to bend so low that I was put in mind of the way the river would round behind the wood of acacia trees। और जब भी वो किसी मकान में दाखिल होते थे, दरवाजे से दाखिल होते थे, तो उन्हें इतना झुकना पड़ता था नीचे कि जिस तरह उनके जिस्म का वो बैंड बन जाता था झुकते झुकते। मुझे वो नदी याद आती थी, तो जहाँ पे वो जंगलों के पीछे चली जाती थी, उसी तरह का बैंड उस नदी में भी मुझे नज़र आता था, जिस तरह का बैंड मेरे दादाजी में उस वक्त नज़र आता था जब वो किसी दरवाजे से दाखिल होते थे। आई लव्ड हिम एंड वुड इमेजिन माई सेल्फ। मुझे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत थी और मैं ये सोचता था अपने अंदर, व्हेन आई
grew to be a man tall and slender like him. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी अपनी दादाजी की तरह लंबा और पतला सा बड़ा हो जाऊंगा. Walking along with great strides. और मैं भी चलूंगा दादाजी की तरह बड़े बड़े कदम जो हैं डालूंगा जिस तरह दादाजी डालते हैं. तो बच्चों, हमारे पहले 2 जो पैराज हैं वो हमने आज कंप्लीट किए हैं. इंशाल्लाह यहाँ से नेक्स्ट जो हैं हम कल शुरू कर देते हैं. और तब तक के लिए आप अच्छी तरह से इस लेसन को देखोगे, घर में पढ़ोगे और बुक सामने रख करके ये वीडियो सुनोगे. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.